کے شہر اولیہ میں سج کیا عالمی کرکٹ کا میدان۔ انٹرنیشنل کرکٹ کی جنوبی پنجاب میں 14 سال بعد واپسی۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کی ملتان آمد فول پروف سیکیورٹی میں ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ تا نواں شہر چوک تک 6000 پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ مقامی ہوٹل پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہمان ٹیم آج آرام کرے گی۔ پاکستانی ٹیم آج 4 بجے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم گزشتہ روز ملتان پہنچی تھی۔ یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز ٹیم کو پروٹوکول کے ساتھ مقامی ہوٹل منتقل کیا گیا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل پہنچے تو ہوٹل میں وارم ویلکم کیا گیا۔ کھلاڑیوں کو گلدستے پیش کیے گئے۔ کل یہ ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم تھی وہ اسلام آباد پہنچی۔ اسلام آباد سے آج خصوصی طیارے کے ذریعے انہیں ملتان منتقل کیا۔ ملتان منتقل کرنے کے بعد ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے انہیں مقامی ہوٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سیکیورٹی پروٹوکول تھا جو کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کو دیا گیا ہے اور انتہائی سیکیورٹی حصار میں انہیں مقامی ہوٹل منتقل کیا گیا۔ ہوٹل منتقل کرنے کے بعد ٹیم کی جانب سے اور پی سی بی جو مینجمنٹ ہے ان کی جانب سے کھلاڑیوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے ہیں۔ اب خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ آج ریسٹ ڈے ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا۔ کل یہ مہمان ٹیم جو ہے وہ ملتان اسٹیڈیم میں پہنچے گی اور پریکٹس کرے گی، لیکن جو پاکستانی ٹیم ہے یہ گزشتہ رات سے ملتان میں موجود ہے۔ آج پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی 4 بجے بتایا گیا ہے پی سی بی حکام کی جانب سے کہ آج یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم پہنچے گی اور اپنی پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ ماجد کلاسرا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ماجد، ٹیم جو ہے وہ ہوٹل پہنچ چکی ہے، ریسٹ کر رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے اسلام آباد سے جو ہے وہ خصوصی طیارے سے جو ہے وہ ملتان پہنچی ہے۔ ملتان پہنچنے پر جو وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور ان کو خصوصی اثار کے ذریعے جو ہے وہ ہوٹل منتقل کیا گیا۔ ہوٹل جانے والے جو راستے اگر ہم ابدالی روڈ کی بات کریں جو ہے وہ عزیز ہوٹل کی بات کریں تو وہاں پر جو راستے ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا گیا تھا اور اس کے سخت سیکیورٹی میں ان کو ہوٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے وہ آرام کرے گی اور پاکستانی جو ٹیم ہے آج 4 بجے جو ہے وہ اسٹیڈیم جائے گی اور وہاں پر پریکٹس کا جو ہے وہ آغاز کرے گی۔ پریکٹس کی اگر بات کریں تو پاکستانی ٹیم کے جو روٹس ہوں گے ان پر جو ہے وہ مکمل سیکیورٹی جو ہے وہ سخت کی گئی ہے۔ روٹس کی بات کریں تو ایس پی چوک، اس کے ساتھ ساتھ کایا پور چوک، بھاولپور بائی پاس چوک اور بہاڑی چوک سے اسٹیڈیم کی طرف جانے والے جو روڈز ہوں گے ان پر جو ہے وہ مکمل طور پر جو وہ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کیے جا چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیس کی بات کریں تو پولیس کے 6000 جو اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 4000 جو اہلکار ہیں جو دیگر اضلاع سے جو وہ پولیس جو ہے وہ بلائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک پولیس ہے وہ اس کے 1100 جو افراد ہیں وہ بھی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ رینجرز کے اہلکار بھی جو ہے وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی جا چکی ہے کہ میچز کے دوران جو ہے وہ شہری جناح جو ہے وہ فاطمہ ٹاؤن میں جو ہے وہ اپنی گاڑیاں جو ہے وہ پارک کریں گے اور وہاں سے خصوصی شٹل سے ان کو جو ہے وہ اسٹیڈیم میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ تو مہمان ٹیم جو ہے وہ اس سے نجی ہوٹل میں پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ آرام کریں گے اور کل سے جو ہے وہ پریکٹس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ لیکن آج پاکستانی ٹیم 4 بجے جو ہے وہ یہاں سے ہوٹل سے روانہ ہوگی اور سخت سیکیورٹی میں اس کو جو ہے وہ اسٹیڈیم میں منتقل کیا جائے گا۔ اچھا کلاسرا، یہ کہیے گا مقامی ہوٹل میں جہاں ویسٹ انڈیز اور بلکہ دونوں ٹیمیں جنہوں نے اسٹے وہاں پر کیا ہے، وہاں جو ہوٹل کی سیکیورٹی ہے وہ کیسی ہے، کتنی لیئرز پر مشتمل ہے؟ وہاں پر پولیس تعینات ہے یا رینجرز تعینات ہے؟ ہاں جی بالکل، ہوٹل کی سیکیورٹی کی بات کریں تو وہاں پر رینجرز کے اہلکار بھی تعینات ہیں اور جو نجی ہوٹل کا جو ایریا اس کو ریڈ زون جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا اور اس وہاں پر جو علاقہ مکین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کی بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ چیکنگ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک کا جو ٹیم کا روٹ ہوتا ہے وہاں پر بھی جو بلڈنگز ہیں وہاں پر بھی جو پولیس کے اہلکار ہے وہ بھی تعینات کیے جائیں اور وہاں پر بھی چیکنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو جو ہوٹل کا جو ایریا ہے اس کو ریڈ زون جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ وہاں پر پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور ایلیٹ فورس کے اہلکار بھی جو ہے وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بہتر کلاسرا، جہاں پر یہ مقامی ہوٹل ہے وہاں پر پریس کلب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی انسٹیٹیوٹ کارڈک سینٹر بھی ہے، تو اس کے لیے کیا متبادل ارینج کیا گیا ہے؟ اس کی ٹریفک یا ایمبولنس کیسے گزرے گی ہاسپٹل کی؟ ہاں جی، یہ جو ہاسپٹل ہے یہ جو عزیز ہوٹل چوک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیرہ آدھا چوک ہے وہاں سے جو ہے وہ روٹ جو ہے وہ اس کا بنایا گیا ہے۔ پریس کلب تک جو ہے وہ جو صحافی ہیں وہ پریس کلب تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عزیز ہوٹل چوک سے جو راستہ آتا ہے وہ کھڈیالوچی چوک تک جو ہے وہ ہسپتال تک پہنچتا ہے جس سے شہریوں کو جو ایمبولینسز ہے وہاں تک رسائی دی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کلب سے جو آگے جو جتنا بھی روٹ ہے اس کو ریڈ زون جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ وہاں پر
किसी किस्म की जो मूवमेंट की इजाजत नहीं है। और इसके साथ साथ नवा शहर जो चौक है उसको भी जो वो मुकम्मल तौर पर जो वो ब्लॉक किया गया है, वहां पर भी कोई जो है वो मूवमेंट नहीं की जा रही। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी सख्त की गई है। और मुख्तसर ये कि रेड अलर्ट करार दिया गया है और सख्त तरीन हिसार में है इस वक्त होटल, और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तानी हुकाम और पीसीबी हुकाम की जानिब से। माजिद क्लासना आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर औलिया में सज गया आलमी क्रिकेट का मैदान। शहर औलिया मुल्तान में सजेगा पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट का मैदान। वेस्ट इंडीज की टीम मुल्तान पहुंच गई है। एयरपोर्ट से होटल तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यासिर मजीद की पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज की तैयारियां। मेहमान टीम इस्लामाबाद से खसूसी तैयारे पर मुल्तान एयरपोर्ट लैंड हुई। सख्त सिक्योरिटी हिसार में टीम को होटल मुंतकिल किया गया। वेस्ट इंडीज टीम की सिक्योरिटी में रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी तैनात है, जबकि टीम की आमद पर एयरपोर्ट से नवा शहर तक ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक की गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नवा शहर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि शहरियों से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की अपील की गई है। एसपी चौक से अब्दाली रोड पर ट्रैफिक पार्क करने की इजाजत नहीं होगी, जबकि नवा शहर से डेरा अड्डा और कार्डियोलॉजी अस्पताल तक रोड बंद रहेगा। मेजबान और मेहमान टीमें 2 रोज स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। ताहम वनडे सीरीज का पहला मैच 8 जून को खेला जाएगा। कैमरा टीम के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। बहावलपुर में तामीराती मटेरियल की कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान हैं। सीमेंट 70 रुपए इजाफे के बाद 920 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरियों का कहना था कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। गरीब आवाम के लिए घर बनाना भी आसान नहीं रहा। महमूद जहीर हमारे साथ है। महमूद, इतना इजाफा? जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी सीमेंट और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बायस शहरियों के लिए घर बनाना मुश्किल हुआ है। दुकानदार से पहले पूछते हैं कितना इजाफा हुआ है बजरी और सीमेंट में, जरा बताइएगा। ये बजरी पे हुआ है तकरीबन 25 रुपए फुट के, और सीमेंट का हुआ है तकरीबन 60 से 70 रुपए बोरी का इजाफा हो चुका है। तो अब बताइएगा कितनी सीमेंट की कीमत पहले थी, अब होगी, और बजरी की पहले कीमत कितनी थी? एक हफ्ते में तकरीबन 60 से 70 रुपए इजाफा हुआ है। पहले तो ये अब है सीमेंट 910-20 रुपए रेट चल रहा है सीमेंट का, और बजरी पहले 95 रुपए थी, अब 120 रुपए पर फुट चल रही है। सीमेंट पहले 840 रुपए थी। तो ग्राहक लड़ते नहीं आपसे? ग्राहक हमारे लिए मुश्किल हो जाती है जब रेट का इजाफा होता है ना। ग्राहक हमारा जो पक्का ग्राहक होता है वो खराब हो जाता है, बहस करनी पड़ती है, वो दूसरी तरफ चला जाता है। ग्राहक वो करता है कि इतनी महंगाई कल ग्राहक से पूछते हैं ना जी, ग्राहक सीमेंट और बजरी की कीमतों में इजाफा हो गया और वो भी इतना ज्यादा हो जाता है, अचानक हो जाता है, क्या कहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं, पहले थी 50 रुपए फुट बजरी, अब हो गया 130 रुपए फुट बजरी। पहले थी 500 की बोरी, अब हो गया 900 की बोरी। जो 80 रुपए किलो थी वो हो गया 200 से टप गया है। 200 से पेट्रोल भी टप गया है। सारा दिन में आते हैं, काम लगता है नहीं लगता, कभी बैठ के चलते हैं। हम हुकूमत का कहना है और भी इजाफा करेंगे, अभी भी बढ़ाना चाहते हैं, मगर ये ना बढ़ाए, कुछ कम कर ताकि मजदूर तुलू आवाम ताकि घर बना सके। शहरी भी बनाएगा तो हमारा काम भी चलेगा, हम भी माल ढोएंगे, मजदूरी बचो। घर बनाना मुश्किल हो गया है, ऐसे ही हो गया। अब आपके सामने 500 वाली चीज 900 रुपए हो गई है, और अब देख लें जो 50 फुट बजरी मेरी थी अब 120 रुपए। अब एक किस्म का जो जिसने अब एक बंदा घर बनाएगा, अब उसके बाद 4 मजदूर काम करेंगे तो 4 बंदों का 4 से चूल्हा चलेगा। अब आपके सामने 4 के आगे कितने और चूल्हे चलेंगे? सारे चूल्हे बुझ गए। आप कहते हैं कि चूल्हे भी बुझ गए महंगाई होने के बाद, क्योंकि जब घर और दफ्तर नहीं बनेंगे तो फिर महंगाई होने के बाद घर लोगों के जो चूल्हे जलते थे मजदूरों के और दीगर लोगों के, वो सिस्टम रुक जाएगा। तो महंगाई के बायस लोग परेशान है, शिकवा कर रहे हैं और नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत को। खुदा के लिए घर की तामीर भी मुश्किल हो गई है। बहुत शुक्रिया महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिहारी डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सरबराही मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील दौलताना और डिप्टी कमिश्नर ने की। इजलास में सब्जियों और अशियाए खुरनोश की कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया। आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। मियां इरफान दौलताना ने ऐसा कहा। मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह आवाम की फलाह बहबूद है। ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, DC का ऐसा कहना है। बिहारी में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सरबराही मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील दौलताना और DC ने की है। इजलास में सब्जियों और अशियाए खुरनोश की कीमतों का तफसीलन जायजा लिया गया। आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आवाम की फलाह बहबूद है। ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं।
डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर। डॉलर की फिर डबल सेंचुरी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपये, 199 रुपये और फिर 200 रुपये से भी तजावुज कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 197.92 रुपये से बढ़कर 200.50 रुपये पर पहुंच गया है। डॉलर का धोबी पटका, पाकिस्तानी रुपया कमजोर हो गया। डॉलर की फिर डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपये, 199 रुपये और फिर 200 रुपये से भी तजावुज कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 197.92 रुपये से बढ़कर 200 रुपये 50 रुपये पर पहुंच गया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि PP 217 का ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहाल अपना कोई उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी। बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी को ताहाल टिकट नहीं दिया? जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का PP 217 में जो ज़िमनी इंतखाबात का जो मरहला है उसकी तमाम तर जो तैयारियां हैं उनको शुरू कर दिया गया है। बात करते हैं जो पोलिंग है 17 जुलाई को होगी और आज जो है तीसरा रोज है कागजात नामजदगी जमा करवाने का इलेक्शन कमीशन ऑफिस में। अभी तक PP 217 से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं सामने आया जिसने अपने कागजात नामजदगी जो हों वो जमा करवाए हों और कल आखिरी तारीख है 7 जून को ये तमाम उम्मीदवार जो हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन में कोई उम्मीदवार सामने नहीं लाया जा सका जिसने जाके अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हो। दूसरी जानिब बात करते हैं हल्का PP 217 जिसकी आबादी तकरीबन यहां पे मैप के अगर देखें तो तकरीबन 2 लाख से अबव यहां पे वोटर्स हैं, खवातीन और मर्द वोटर यहां पे हैं और इधर जो तैयारियां हैं अरूज पे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहाल अपना कोई भी उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं ला सकी। इसी हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सलमान नईम साबिक MPA, उन्होंने कल गिलानी हाउस में मुलाकात भी की। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और इसके अलावा सूबाई वजीर पंजाब अली हैदर गिलानी और दीगर शरीक थे कि हमारी हमायत की जाए। अभी तक जो सूबाई वजीर पंजाब अली हैदर गिलानी के मुताबिक पार्टी फैसला नहीं कर सकी क्या वाकई हम मुस्लिम लीग नून की हमायत करने जा रहे हैं या फिर अपना उम्मीदवार सामने लाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वहां के उम्मीदवार थे साबका इलेक्शंस के अंदर या फिर टिकट होल्डर्स हैं या फिर ओहदेदारान हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे। अभी तक कल आखिरी दिन है कागजात जमा करवाने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहाल फैसला नहीं कर सकी कि हमने किसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहाल किसी को टिकट अलॉट नहीं कर सकी। अमजद मलिक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उम्मीदवार MPA PP 87 मलिक परवेज इकबाल एडवोकेट की कॉर्नर मीटिंग हुई। मलिक परवेज इकबाल का कहना था कि हल्के की तरक्की के लिए तब्दीली जरूरी है, नताइज की परवाह किए बिना मैदान में आए हैं। मजीद जानते हैं अख्तर मौजाज से। जी अख्तर बताइए। जी बिल्कुल, मियां वाली में एंड द इलेक्शन में मुख्तलिफ चेंज सामने आने जा रहा है और इस वक्त कुछ सियासी तौर पे गहमा गहमा भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक परवेज इकबाल एडवोकेट साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, आप PP 87 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप बड़े मुतहरिक वर्कर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या टिकट मिलेगा सर? जी, मेरी पूरी कोशिश होगी। हम 20 साल से खान साहब के साथ चल रहे हैं और एक अच्छे वर्कर के तौर पे हमने खान साहब का हर मुश्किल में साथ दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि ज़िले की जो हालत है उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि नए लोगों को सामने लाया जाए। ये जो हमारे पुराने चेहरे हैं, इस वक्त जो कंडीशन है ज़िले की वो आपके सब के सामने है कि किसी किस्म की जो डेवलपमेंट जिस लेवल पे होनी चाहिए थी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो नहीं हुई। और इस वक्त जो हमारी अपनी जो वोटर्स हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ कैंडिडेट्स को चेंज किया जाए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि बतौर एक कैंडिडेट मैं सामने आया हूं कि मुझे यकीन है कि खान साहब इंशाल्लाह मुझे ये मौका ज़रूर देंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है, आप इस हवाले से जो कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं उसमें मोस्टली आप PTI के वर्कर से मीटिंग होती है या दीगर लोग इसमें शामिल, और PTI के जो वर्कर हैं उनकी जाने से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, बेसिकली मैंने 24 यूनियन काउंसिल्स हैं मेरे हल्के में ओवरऑल। मैंने 24 में हर यूनियन काउंसिल में 10 लड़कों की एक जो है टीम बनाई है जो, और मैं अपनी जो मीटिंग्स कर रहा हूँ वो सिर्फ PTI वर्कर से नहीं, ओवरऑल पूरे हल्के से कर रहा हूँ और हल्के के मसाइल। और मुझे अनएक्सपेक्टेड
किस्म की जो है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से मुझे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो वेलकम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया इस मामले में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी मलिक परवेज बेहतर अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू है। भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए तालीमी फंड का प्रोग्राम दोबारा बहाल करने का फैसला। पंजाब में भट्टा मजदूरों के बच्चों को वज़ाइफ देने के लिए फंड बहाल किया जाएगा। आइंदा बजट में 50 करोड़ के फंड भी रखे जाएंगे। महाना वज़ाइफ और स्कूल में दाखिले के लिए अलग से रकम मिलेगी। साबिक दौर हुकूमत में प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन को प्रोग्राम में पेचीदगियां दूर करने का हुक्म दिया गया है। सरकारी स्कूलों के खवातीन टीचर्स को स्कूटी देने का फैसला। पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों में खवातीन असातिज़ा को स्कूटी देगी। आइंदा माली साल के बजट में पायलट प्रोजेक्ट की स्कीम शामिल करने की सिफारिशात महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब प्रोग्राम पर बाकायदा काम करेगी। सरकारी स्कूलों तक आसान रसाई के लिए खवातीन असातिज़ा को स्कूटियाँ दी जाएंगी। इससे कबल भी पंजाब हुकूमत ने खवातीन को स्कूटीज फराहम की थी। प्रोग्राम को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम पर आने वाले अखराजात और शराइत भी तय करेगा। माली साल 2022 और 23 का बजट। रेलवे ने हुकूमत से 138 अरब का ऑपरेशनल का बजट मांग लिया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 40 अरब रुपये ज़ायद का बजट मांगा गया है। मुलाजमीन के अखराजात के लिए 35 अरब 38 करोड़ 96 लाख मांगे गए। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 32 अरब 9 करोड़ 21 लाख मांग लिए गए हैं। रिटायरमेंट और दीगर वाजबात के लिए 52 अरब 81 करोड़ 4 लाख रुपए मांगे गए हैं। खर्च की मद में 2 अरब 39 करोड़ 61 लाख रुपए मांगे गए हैं। कैश अवार्ड के लिए 2 अरब 84 करोड़ 69 लाख रुपए मांगे गए। तमीर मरम्मत के लिए 12 अरब 26 करोड़ 61 लाख रुपए तलब किए गए हैं। इसी तरह वेलफेयर अखराजात के लिए 35 करोड़ रुपए तलब किए गए हैं। रेलवे हेडक्वार्टर में बजट सिफारिशात विफाक को इरसाल करती हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं माली साल 2022 और 23 का बजट। रेलवे ने हुकूमत से 138 अरब का ऑपरेशनल बजट मांग लिया है। मजीद बात करेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा किस किस मद में ये बजट मांगा गया है? जी बिल्कुल, माली साल 2022-23 बजट का ये मामला है कि महकमा रेलवे ने हुकूमत से 138 अरब रुपए का ऑपरेशनल बजट है वो मांग लिया है। और इस बजट के अंदर तखमीने में मुलाजमीन के अखराजात की मद में 35 अरब 38 करोड़ 91 लाख है वो मांगे गए हैं, जबकि ऑपरेशनल अखराजात की मद में 32 अरब 9 करोड़ 21 लाख रुपए और मुलाजमीन की रिटायरमेंट और दीगर वाजिबात के लिए 52 अरब 81 करोड़ 4 लाख रुपए और लोन की मद में 2 अरब 39 करोड़ 61 लाख रुपए है वो मांगे गए हैं, जबकि कैश अवार्ड के लिए 2 अरब 86 करोड़ 69 लाख रुपए और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 12 अरब 26 करोड़ 61 लाख रुपए और वेलफेयर अखराजात के लिए 35 करोड़ रुपए है वो तलब किए गए हैं। और जराये के मुताबिक इस साल जो बजट तलब किया गया है वो गुज़िश्ता साल के बजट की निस्बत 40 अरब रुपए ज़ायद जो बजट है वो मांगा गया है। और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने जो सिफारिशात हैं बजट की वो वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी हैं और ये दरख्वास्त की है कि इस मरतबा वफाकी हुकूमत जो है वो महकमा रेलवे को 138 अरब रुपए का ऑपरेशन बजट है वो अवॉर्ड करे ताकि रेलवे को खसाइर से निकाला जा सके और खुद कफील बनाया जा सके। जी, खुद कफील बनाया जा सके। सईद अहमद सईद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरी औलिया में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। शहरी इलाकों में 7 घंटे के गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दही इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के बायस से दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्लासरा से जान लेते हैं। माजिद क्लासरा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, शहर औलिया में हर गुजरते दिन के साथ जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू है। शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में जो है वो 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इसके साथ साथ दही इलाकों में सूरत हाल काफ़ी अबतर दिखाई दे रही है। वहाँ पर हर घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है, जिससे शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद होंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, लोड शेडिंग तो इस कदर ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है इस गवर्नमेंट ने कि समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। सुबह मैंने आगे शॉप खोली है, सुबह से तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट लाइट आई होगी, तो अभी तक लाइट नहीं है। 15 मिनट लाइट आती है, 1 घंटा लाइट जाती है। कोई साने हाल नहीं इस मुल्क का जो हाल इन्होंने कर दिया। हालांकि पहले इमरान खान का भी दौर गुजरा है, इस तरह कभी नहीं हुआ जो इन्होंने लोड शेडिंग की है। शहरी मौजूद हो, उनसे बात करें। जी बताइएगा, घर में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, क्या कहेंगे, कितनी दफ़ा लोड शेडिंग हो रही है? सर, मजदूर आदमी है, घर से काम पे से घर जाते हैं तो लाइट नहीं मिलती। जब बाहर आते हैं बोतल वगैरह पीने के लिए, जब भी लाइट बोतल ठंडी नहीं मिलती। अब मजदूर आदमी किधर जाए, आप हमें बताएं। इमरान खान था जब ज़रा कंट्रोल था आवाम के ऊपर,
अब मगर कोई कंट्रोल ही नहीं है, घर जाते घर भी लाइट नहीं होती। बिल्कुल शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। उनका कहना था कि गर्मी शहरियों काफ़ी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माजिद कलासरा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आमिर डोगर हमारे साथ। आमिर, बताइएगा, 2 घंटे के लोड शेडिंग कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद 12-12 घंटे। जी बिल्कुल, एक तरफ तो सूरज सवा नेज़े पर और मुजफ्फरगढ़ में गर्मी की वजह से शहरियों का बुरा हाल है, तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग जो है वो बदतरीन इजाफा हुआ लोड शेडिंग में। शहरी इलाकों में सिर्फ 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या सूरत हाल है जी। दरख्तों के नीचे बैठे हैं। सर जी, सूरत हाल ये है कि मैं बेसिकली एक ताजिर हूँ। ताजिर की हैसियत से मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि कारोबार हमारे तबाह हो चुके हैं। बड़े लोग खुश थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आएंगे, 11 पार्टियाँ आएंगी, मुल्क जो ना सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएगा, डॉलर रुक जाएगा और हमें IMF की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल सारी चीज़ें इसके अगेंस्ट जा रही हैं और आप चल के देखें, मैं आपको शहर का विज़िट कराता हूँ, कोई कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं, अफरा तफरी का आलम है और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी दुकान छोड़कर यहाँ पर नीम की ठंडी छाँव के नीचे मैं आकर बैठा हूँ कि कुछ थोड़ा सा मुझे सुकून आए और आसानी मिले। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो लोड शेडिंग से ज़्यादा मुतासिर हैं? सर, ये तलीरी फीडर तो बेहद जो ना मुतासिर है। अच्छा, फिर शहर हमारा जो ना एक स्ट्रक्चर है, जो ना मुआशी हब है, इसके अंदर भी जनाब ये इन्होंने कोई लगता है कोई फार्मूला बनाया है कि बिजली की लोड शेडिंग करेंगे, इनके बिल कम आएंगे और लोगों में जो ना थोड़ी सी बेचैनी कम रहेगी। लेकिन बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया गर्मी की वजह से और कारोबार डाउन होने की वजह से लोग बहुत परेशान। जी बिल्कुल, लोग बहुत परेशान हैं, कारोबार डाउन हो चुके हैं और मुजफ्फरगढ़ के शहरी कारोबार तबाह हो रहा है। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल DC दफ्तर में एपका मुलाजमीन का कलम छोड़ हड़ताल करके अपने मुतालबात के हक में धरना। नदीम मुगल से जानते हैं। जी नदीम, बताइए। DC ऑफिस में एपका मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल की है। उनका कहना यह है कि यह हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। तो मजीद हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एपका मुलाजमीन, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि एहतजाज किया जा रहा है, कलम छोड़ हड़ताल की गई पहले मरहले में, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं? इसमें बड़े हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़े हमारे बेसिक से मुतालबात हैं इसके अंदर कि हम ये कहते हैं कि जिस तरह हुकूमत ने होशरुबा महंगाई कर दी है, जिस तरह हमारी तजर्बाकार गवर्नमेंट ने जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल वगैरह, उनकी कीमतें 200 रुपये बढ़ा दी हैं और जो सिंपल जो हमारा जो फ्यूल है जिसकी कॉस्ट उन्होंने 60 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज़ कर दी है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो सरकारी मुलाजमीन है उनका जीना महाल हो चुका है। इतना आपने दो भर कर दिया है कि जो 20,000 सैलरी वाला है कि वो शायद फाकों से न मरना शुरू हो जाएं। तो हम ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें और हम ये गवर्नमेंट को ये पैगाम देते हैं कि जिस तरह आपने 200% इंक्रीज़ किया है, कम अज़ कम हमारा 100% इंक्रीज फिल फॉर किया ताकि हमारी सर्वाइवल जो है हम सर्वाइव कर सकें। वरना ये मुलाजिम जो हैं ये इस वक्त बिल्कुल इस हालात में आ चुके हैं कि वो तबाही के हालात के अंदर है इस वक्त मुलाजिम। जी, मुश्किलात बढ़ रही है। ये बताइएगा कि मुतालबात अगर गवर्नमेंट पूरे नहीं करती तो एपका की क्या लाहेमल? एपका अपना लाएअमल पहले दे चुकी है कि ये पहले ज़िले लेवल पे, उसके बाद डिवीज़न लेवल पे, उसके बाद सूबाई लेवल पे और उसके बाद इस्लामाबाद में धरना होगा, जिसमें पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन अपना हकूक़ लेने के लिए जाएंगे। हुकूमत वक्त से यही है कि अकल के नाखुन लें और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह महंगाई के तनासब से बढ़ाएं। इसी में उनकी बका है और इसी में उनकी अपने हक के लिए इस्लामाबाद धरना दे। शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए आपको दिखाते हैं। खान के लोगों के बारे में और रहीमिया खान के हवाले से बड़ी पॉजिटिव, क्योंकि जब भी कोई अफसर किसी शहर में पोस्ट होता है तो उसको उसकी अपनी कम्युनिटी से जो अफसर इधर सर्व कर चुके हैं, जिनके इधर से तल्लक होता है, तो वो कॉल करके ज़रूर फीडबैक देते हैं। तो ये एक मेरी ऐसी पोस्टिंग थी जहाँ पे मुझे हर तरफ से लोगों ने ये कहा कि रहीम यार खान के लोग अच्छे लोग हैं और ये आपके साथ खड़े होंगे और आपकी मदद करेंगे मसाइल हल करने में। सो ये सबसे अच्छी बात जो मुझे रहीम यार खान के हवाले से फीडबैक मिला। दूसरी बात जो आपके पास हाजिर होने का मकसद था, एक तो ये चीज़ है कि मीडिया का रोल, जिस तरह की अब हमारी सिचुएशन चल रही है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की, आप आइज़ एंड ईयर्स है, आपके थ्रू ही आम बंदे तक पैगाम पहुंचता है। मेरा DC ऑफिस हो, मेरे AC ऑफिस हों,
जब तक आप लोगों का हमारे साथ साथ ना हो तो हम जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही होती है डिस्ट्रिक्ट पे, तहसील लेवल पे, वो लोगों तक पहुंच नहीं सकता। सो उस हवाले से आपसे भी गुजारिश होगी कि हम आपसे गाए बगाए मुआवनत चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपके थ्रू लोगों तक भी पहुँचे कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। इस बारे में जिस तरह आपको पता है कि हमारी स्टेट के 3 सतून हैं, जिसमें मुकन्ना है, अदलिया है और एग्जेक्टिव है, और जो चौथा सतून है वो मीडिया का कंसिडर किया जाता है। सो ये वो सतून है 4 जिन पे स्टेट खड़ी होती है और इसका हर एक का अपना रोल है जिससे स्टेट चलती है। सो आप एक सतून के तौर पे काम करते हैं और मेरा आपसे यही एक्सपेक्टेशंस होगी कि जहाँ पे आपको कहीं पे आपको नज़र आता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कोताही है, वो ज़रूर मेरे तक पहुँचाए। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी कुव्वत होगी मैं ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करूँगा और मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। सरगोदा में स्पेशल ब्रांच और महकमा ज़राअत का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। निजी गोदाम से जखीरा की गई 6100 बोरी गंदम बरामद कर ली गई। गोदाम से जखीरा की गई 400 बैग यूरिया खाद भी बरामद कर ली गई है। 800 यूरिया बैग से भरा हुआ ट्रक भी तहवील में ले लिया गया है। मियांवाली में डीपीओ इस्माइल रहमान खाड़क की पिपला थाना में खुली कचहरी। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात भी दिए हैं। मुख्तलिफ थानों में हफ्ते में 3 रोज खुली कचहरी लगाई जाएगी। डीपीओ का ऐसा कहना है अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। डीपीओ इस्माइल रहमान खाड़क ने ऐसा कहा। मुल्तान मोटरवे पुलिस ने मुल्तान सक्कर मोटरवे पर नो मोर मुहिम का आगाज कर दिया है। मोटरवे पर कवानीन की खिलाफ वर्जी अब ड्रोन से मॉनिटर की जाएगी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को ITS सिस्टम के तहत तलाश किया जाएगा। मुहिम का मकसद कीमती इंसानी जानों को बचाना है। मोटरवे पुलिस का ऐसा बताना है तेज रफ्तारी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों को अब जदीद टेक्नोलॉजी से पकड़ा जाएगा। सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने वालों को भारी जुर्माने होंगे। मोटरवे पुलिस का ऐसा बताना है। मोटरवे पुलिस ने मालबरदार गाड़ियों का डाटा भी महफूज करना शुरू कर दिया है। बहावलपुर में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ये आखिरी मरहला है। 100 नशिस्तों पर तकर्री के लिए इंटरव्यूज जारी हैं। DIG अब्दुल गफ्फार कैसरानी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का आखिरी मरहला। 100 नशिस्तों पर तकर्री के लिए इंटरव्यूज जारी हैं। DIG अब्दुल गफ्फार कैसरानी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। बहावलपुर में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का आखिरी मरहला। 100 नशिस्तों पर तकर्री के लिए इंटरव्यूज जारी। मुल्तान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काश्तकारों की एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप का मकसद काश्तकारों को कपास के फसल बारे आगाही फ्राहम करना है। तरबियती वर्कशॉप में 200 से ज्यादा काश्तकारों ने हिस्सा लिया। अली रियाज की से जान लेते हैं मजीद। अली बताइएगा। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज जो है कपास की बेहतर पैदावार के लिए BCI जो एक प्रोजेक्ट है उसके तहत मुल्तान डिवीजन के जो काश्तकार हैं उनके लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद ये था कि हमारे इस खिते में कपास की काश्तकारों को कैसे बेहतर पैदावार को मज़ीद बेहतर किया जाए, पैदावार कदर बेहतर रही है। इस साल क्या इनिशिएटिव्स हैं आपके जो चीज़ें लेकर चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो चंद मसाइल आ रहे हैं हमारी पैदावार में कमी के का बायस बन रहे हैं, तो उन्हीं के हल के लिए हमने आज की ट्रेनिंग रखी है। इसमें मेन हम जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसको फोकस किया है और दूसरा जो इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम बन रहा है उनको भी हम एड्रेस करेंगे और स्पेशली पिंक बॉलवर्म का जो उसका जो लॉसेज आ रहे हैं तकरीबन 1 से 2 मिलियन बेल्स का लॉस उसकी वजह से होता है, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बल्कि इनको वो पिक्चर्स और फिजिकली सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। अखराजात कम होंगे, पैदावार बढ़ेगी। तो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज जो वर्कशॉप का इनेकाद किया गया इसका मकसद ये है कि हमारे जो काश्तकार हैं उनको बताया जा सके कि किस तरह से और किन किन बेसिक स्टेप्स को जो है फॉलो करके बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है, जिसमें सीसीआर बेहतर। अली रियाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीडी खान में मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया है। मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक। जी आशिर बताइए। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया की रोकथाम के हवाले से डेरा गाजी खान में सेमिनार कंडक्ट किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान में सेमिनार का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की है और जो शुरका थे उनको बाकायदा तौर के ऊपर सेमिनार में थैलेसीमिया की रोकथाम के हवाले से जो आगाही है वो दी गई। बात कर लेते हैं डॉक्टर शकील लगारी साहब मौजूद है, पीड्स हेड है। सर क्या कहना चाहेंगे थैलेसीमिया की रोकथाम के हवाले से, क्या इकदाम गवर्नमेंट की जानब से किए जा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे?
تھیلیسیمیا کی ظاہر ہے یہ ہمارے پاس پریونشن جو ہے نا پنجاب تھیلیسیمیا وہ بھی بڑے عرصے سے یہاں کام کر رہی ہے، اور پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ میں تھیلیسیمیا کے ہم نے سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی وساطت سے ہم پیشنٹس کی اسکریننگ کر رہے ہیں، اور اس اسکریننگ کو ظاہر ہے اسپیشلی ہم ان فیملیز کو فوکس کر رہے ہیں جہاں آلریڈی تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، تاکہ یہ جو ہے نا آگے جو کیریئر ہیں جن میں یہ بیماری ہوتی تو ہے لیکن جس کا ہمیں اندازہ ہوتا نہیں ہے، اور وہ ایک ہیلدی لائف گزار رہے ہوتے ہیں جو کیریئر ہیں تھیلیسیمیا کے، وہ پھر آگے ظاہر ہے جو اس طرح فیملیز میں آپس میں شادیاں کرتے ہیں تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں تھیلیسیمیا میجر ہوتا ہے، اور تھیلیسیمیا میجر آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہے سچ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے بڑے آپشنس ہیں علاج کے، بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، فیوچر میں شاید جین تھراپی ہے جو شاید ہمارے ہاں ایریا کے لیے اور جو لوگوں کی وساطت میں ہے، یا گورنمنٹ اس طرح کی شاید چیزیں پاسبل نہ ہوں، اس کی بھی پھر پری ریکویزٹس ہیں، تب تک وہ بچے جب رپورٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بلڈ لگواتے ان کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بھی قابل نہیں رہتے، تو ہر مہینے ان کو بلڈ لگنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو آج کا سیمینار تھا اس میں ہم یہ چیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں اور اپنی میڈیا کے وساطت سے، اور لوگوں کو یہاں انگیج کر کے یہ میسج فیملیز میں پہنچائیں کہ تھیلیسیمیا کی جو ہے نا بچاؤ ہی ممکن ہے، اور اس بیماری کا علاج آپ کہیں اگر ناممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تھینک یو۔ تھیلیسیمیا کا علاج ممکن ہے۔ بشیر صاحب کتنا بچے ہیں جن کو باقاعدہ طور کے اوپر بلڈ دیا جاتا ہے ہر ماہ، کیا شیڈول ہوتا ہے؟ تقریباً ڈی جی خان میں 700 سے ابو پیشنٹ جو تھیلیسیمیا میجر کے رجسٹرڈ ہیں ان کو ویکلی طور پہ 40 سے 50 پینٹ ٹرانسفیوژن دی جاتی ہے فری آف کاسٹ، اور چلیشن تھراپی ڈی ایچ کیو کی طرف سے چلیشن تھراپی بھی ویکلی منتھلی طور پہ دی جاتی ہے۔ جی بالکل، تھیلیسیمیا کے حوالے سے آگاہی سیمینار جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں میڈیکل کالج میں بھی۔ بہتر عاشر، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں سیمینار سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میاں چنو میں بلدیہ زکریہ ہال میں جذبہ حب الوطنی کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، مزید جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں فخر زمان۔ فخر بتائیے۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں میاں چنو بلدیہ زکریہ ہال میں، جہاں پر آج جو ہے جذبہ حب الوطنی وائس آف پنجاب کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بچوں کی جانب سے جو ہے ٹیبلو پیش کیے گئے ہیں، ملی نغمے پیش کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سلیم بھٹی صاحب۔ سر بتائیے گا، آج آپ جو ہے خانے وال سے تشریف لائے ہیں اور تقریب میں جو ہے وہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے تقریب کا جو اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جذبہ حب الوطنی کا پروگرام انڈر وائس آف پنجاب ہم نے اس لیے اس کا پروگرام کا انعقاد کیا تاکہ بچوں میں شعور پیدا ہو۔ ملکی حالات جیسے دفاعی صورتحال ہے، مالی پوزیشن ہماری کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے کو کوئی بھی طاقت جو ہے ماند نہیں کر سکتی۔ یہی ہم نے اجاگر کرنا تھا، اور صرف بچوں میں نہیں، سوسائٹی کے دیگر افراد جو ہے اس کو جذبہ آلریڈی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید جلا بخشی جائے، اور کسی بھی صورتحال جو بھی ناگہانی صورت پاکستان میں ہو، خدا نخواستہ یا کوئی اور آزمائش ہو، ہم ساری قوم متحد ہیں، اور کسی بھی قسم کی دفاع وطن پہ اگر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم سارے کے سارے جو ہے نا یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور الحمدللہ ہم سارے متحد ہیں، اور دشمن کو، کسی بھی دشمن کو اس وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ انشاءاللہ ہوگی۔ ہم متحد ہیں، چاہے کتنے ہی ہم آپس میں فرقے ہوں، جو بھی ہیں، لیکن ہم اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور جب بھی وطن عزیز کو ضرورت پڑی ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت جی بالکل، وطن کے لیے جب بھی ضرورت پڑی تو اپنا بہتر فخر زمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہاولپور میں 3 روزہ انٹر ڈسٹرکٹ کمشنر کپ سپورٹس گالا سجے گا۔ ضلع سے گرلز اور بوائز ٹیمیں والی بال، آرچری، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کراٹے اور ہینڈ بال کے مقابلوں میں حصہ لینے جا رہی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر بتائیے۔ جی بالکل، رحیم یار خان کے کھلاڑی اس وقت پریکٹس میں مگن ہے، کیونکہ انٹر ڈسٹرکٹ کمشنر کپ جو ہے سالانہ اس کا مقابلہ جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد شفاق ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائے گا کہ کون کون سے کھیل کے مقابلے ہوں گے، کتنے دن کا ٹورنامنٹ ہوگا؟ رحیم یار خان کی ٹیم نے جو پچھلے سال کا مقابلہ تھا، ٹورنامنٹ تھا، وہ تو اپنا نام کیا، اس مرتبہ آپ کی کیسی تیاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کمشنر کپ سمر سپورٹس گالا 2021-22 کی انعقاد جو 7 سے 9 جون تک کرایا جا رہا ہے بہاولپور ڈرنک اسٹیڈیم، جس میں ضلع رحیم یار خان کی 12 ٹیمیں بوائز اور گرلز کی 90% کا کنٹیجنٹ پارٹیسپیشن کر رہا ہے۔ الحمدللہ سابقہ برس بھی کمشنر کپ 2020-21 میں رحیم یار خان کی نمایاں پوزیشن رہی، اور انشاءاللہ اب بھی ڈپٹی کمشنر صاحب کا ذاتی انٹرسٹ، جس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے ٹریننگ کوچنگ کیمپ بھی چل رہے ہیں، بچوں کے لگائے ہیں،
اور اس میں 6 گیمیں جون سی ہیں وہ بوائز کی ہیں, 6 گرلز کی ہیں, جن میں والی بال, ہینڈ بال, ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, آرچری یہ گیمیں شامل ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ضلع رحیم یار خان صاحب کا برف اس طرح اپنے ٹیلنٹ کا بھی دفاع کرے گا اور بہترین پروگرس پیش کریں گے. تمام کھیلوں کے جو کھلاڑی ہیں ان کو مکمل سپورٹس انتظامیہ سہولیات بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس مرتبہ پر امید ہے کہ تمام کھیلوں میں جیت رحیم یار خان کے کھلاڑی. بہتر عامر, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.